Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Zahra Noreen, course instructor of Plant Physiology 1, BOTN 3119. Today's topic of the lecture is regulation of the Calvin cycle. The high energy efficiency of the Calvin cycle indicates that some form of regulation ensures that all the intermediates in the cycle are present at adequate concentrations, and that the cycle is turned off when it is not needed in the dark. In general, variation in the concentration or in the specific activity of the enzyme modulates catalytic rates, thereby adjusting the level of the metabolites in the cycle. Two types of regulations of Calvin cycles. One is the long-term regulation and the other one is short-term regulation. In case of long-term regulations, there is changes in gene expression and protein biosynthesis regulates enzyme concentration. These involve the post-translational modification of the protein that contributes to the regulation of enzyme activity, and the other long-term regulation is at the genetic level that the amount of each enzyme present in the chloroplast is regulated by a mechanism that controls the expression of the nuclear and chloroplast genome. As we know that all the enzymes, those are working in the chloroplast, are not encoded by only the chloroplastic genome, and they are also encoded by a nuclear genome and then transported to the chloroplast. Short-term regulation of the Calvin cycle. Short-term regulation of the Calvin cycle is achieved by several mechanisms that optimize the concentration of intermediates. These mechanisms minimize reactions operating in opposite directions, which would waste resources. Generally, there are two mechanisms that can change the kinetic properties of enzyme. One is the transformation of covalent bonds, such as the reduction of disulfides and the carbamylation of the amino groups. We generate a chemically modified enzyme, generally an active enzyme. The modification of the non-covalent interaction, such as the binding of the metabolites or changes in the composition of the cellular milieu, like pH, temperature, etc. These also affect the activation and deactivation of the enzyme. In addition, the binding of the enzymes to the thylakoid membrane also enhance the efficiency of the Calvin cycle, thereby achieving a higher level of organization that favors the channeling and protection of the substrates. Now we will discuss the enzymes which are regulated by light. So here are 5 light-regulated enzymes. Those operate in the Calvin cycle. One is Rubisco, ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase or oxygenase. The second one is NADP glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. Third one is fructose 1,6-bisphosphatase. Fourth one is pseudoheptulose 1,7-bisphosphatase. And the one is ribulose 5-phosphate kinase enzyme. All these 5 enzymes are thought to be regulated by light-dependent enzyme activation processes. In the previous slides, I have told you about 5 enzymes. The last 4 enzymes, except Rubisco, all those enzymes contain one or more disulfide groups, means SS group. They have the residue, cysteine residue, which contains sulfur group, so they can form the sulfur bridge or the covalent bond between their sulfur atoms. Light control the activity of these 4 enzymes via the ferredoxin thyrodoxin system. What is this system? I will explain you in the later slides. This is actually a covalent thiol based, जिस तरीके से OH ग्रुप अगर किसी मॉलिक्यूल का हिस्सा होता है तो हम उसे कहते हैं कि वो अल्कोहल उसका ग्रुप है. इसी तरीके से जब किसी मॉलिक्यूल में SH ग्रुप मौजूद होता है तो हम कहते हैं कि ये उसके अंदर थायोल जो है ग्रुप मौजूद है. तो थायोल बेस्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैकेनिज्म is actually involved, जो कि एंजाइम को एक्टिवेट करने का बायस होते हैं. And this mechanism was first identified by Bob Buchanan and his colleagues.
And the last four of the enzymes which are listed in the previous slides are regulated directly by this thyrodoxine protein, which in turn regulated by the paradoxin thyrodoxine system. And the first Rubisco is regulated indirectly by thyrodoxine, and accessory enzyme Rubisco activase is also required for the activation of Rubisco. The ferredoxin thyrodoxine system actually regulates the enzyme by redox transitions. The ability of a cysteine residue to reversibly form intra and intramolecular disulfide bond, means SS bond, is of primary significance for the dynamic regulation of enzyme activity in response to redox condition of the chloroplast. मतलब जिस तरह की redox condition होगी chloroplast में, उसके हिसाब से जो enzyme की activity या deactivity है, उस हिसाब से वो decide होगी कि आया किस तरह की conditions होंगी तो enzyme active होंगे या deactivate होंगे. So this is actually this post translational modification in which disulfide bonds are reduced to sulfhydryl SH levels in the light. That has been subject of intense research in the plant since the discovery of the ferredoxin redoxin thyrodoxin system in 1970s. Now, many of the enzymes those are activated by light actually depends on this ferredoxin thyrodoxin system, and this system is utilized to make them activate. In the dark, the same process which was used to activate the enzyme get reversed, and in the light the SS bond converted into SH sulfhydryl form. In the darkness, sulfhydryl form will be converted back into SS form. So a reversal of the you can say the process occurs, and that's why the enzyme gets deactivated or inactivated form में वो convert हो जाता है. सो इन द लाइट अगर हम कहें कि एंजाइम जो है वो एसएस फॉर्म में मौजूद है, और इन द डार्कनेस जो एंजाइम और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसएच फॉर्म में, और इन द डार्कनेस एसएच फॉर्म से वापस एसएस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस रिडॉक्स चेंजेस एक्चुअली लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम, क्योंकि एसएच फॉर्म जो है रिड्यूस्ड फॉर्म है और एसएस फॉर्म जो है ये इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है. The resolution of the crystal structure of each member of the ferredoxin thyrodoxin system, जो कि मैं आगे आपको explain भी करूँगी इसका पूरा इस सिस्टम का पूरे कंपोनेंट्स को, और उनको किस तरीके से खुद जो है reduced and oxidized फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. तो इनको इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है और उनसे ऑन द टारगेट एंजाइम फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंड NADP मैलर डिहाइड्रोजिनेज, इन दोनों से हमें साइंटिस्ट को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो मिली है, जो कि इनके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती हैं कि वाकई में इसमें सल्फाइड्रल, जिसको आप डाईथायोल सिग्नल भी कह सकते हैं, इसकी एक्चुअली रेगुलेटरी प्रोटीन थायरोडॉक्सिन की ये जो हिस्सा है, दिस इज ट्रांसमिटेड टू द स्पेसिफिक टारगेट एंजाइम, और फिर वो इंटर्न उसको रिड्यूस कर देता है. मतलब थायरोडॉक्सिन खुद जब रिड्यूस्ड फॉर्म में होती है, सल्फाइडल ग्रुप के साथ मौजूद होती है, तो उसके बाद ये इस काबिल होती है कि ये किसी एंजाइम को अपना ये जो है सल्फाइडल ग्रुप, या कहने के उसको सल्फाइडल ग्रुप जो है उसका बनाकर और उसको रिड्यूस कर देती है, और खुद ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है. इन सम केसेस जैसा कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज में देखा गया है कि थायरोडॉक्सिन लिंक्ड एक्टिवेशन इज एनहांस्ड बाय एन इफेक्टर, यानी कि थायरोडॉक्सिन लिंक्ड एक्टिवेशन तो होगी ही, लेकिन उसके साथ अगर सबस्ट्रेट 1,6 बिसफॉस्फेट भी मिल जाए जिसके ऊपर इस एंजाइम ने काम करना है, तो उससे इसकी एफिशिएंसी जो है वो और बढ़ जाती है. और इनएक्टिवेशन जो है टारगेट एंजाइम की, दोज आर ऑब्जर्व्ड अपॉन डार्कनिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एंड दैट अपीयर्स टू टेक प्लेस बाय अ रिवर्सल ऑफ द रिडक्शन पाथवे, मींस के ड्यूरिंग डार्कनिंग ऑक्सीडेशन हो जाती है, और ड्यूरिंग लाइट जो है वो रिडक्शन हो जाती है. तो रिडक्शन विल मेक द एंजाइम एक्टिवेट, and oxidation will make the enzyme inactivate. That is oxygen, कह सकते हैं कि oxygen will convert the thyrodoxine and the target enzyme from the reduced to the oxidized state,
और इसी तरह करने की वजह से एंजाइम्स और थायरोडॉक्सिन ज़ाते खुद भी जो है वो इनएक्टिवेट हो जाती है। The ferredoxin thyrodoxin system is reduced specific enzymes in the light. For example, ये हमारे पास टारगेट एंजाइम है जिसको हमने एक्चुअली एक्टिवेट करना है वाया रिडक्शन प्रोसेस, जो कि थायरोडॉक्सिन के जरिए होगी। थायरोडॉक्सिन बजाते खुद जो है वो FTR फेरिडॉक्सिन थायरोडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम के जरिए रिड्यूस होगा, और जब ये रिड्यूस होगा तो ये इस काबिल होगा कि ये हमारे टारगेट एंजाइम को रिड्यूस कर सके। और this activation process ultimately required the light, because light की presence में photosystem 1 जो है वो फेराडॉक्सिन को, reduced फेराडॉक्सिन को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। reduced फेराडॉक्सिन जो है these plus the proton जो कि स्ट्रोमा में मौजूद होते हैं ऑलरेडी, प्रोटॉन प्लस द फेराडॉक्सिन रिड्यूस्ड फॉर्म, ये दोनों मिलके रिड्यूस करेंगे कैटालिटिकली एक्टिव डाइसल्फाइड ग्रुप ऑफ द आयरन सल्फर एंजाइम ferredoxin thyrodoxin reductase, or which in turn reduces the highly specific disulfide bond of the small regulatory protein थायरोडॉक्सिन। और थायरोडॉक्सिन जब अपनी इस रिड्यूस्ड फॉर्म में आती है, नाउ इट इज एबल टू रिड्यूस द क्रिटिकल डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ अ टारगेट एंजाइम, और वो इसके सल्फर सल्फर ब्रिज को तोड़कर और इसको सल्फ हाइड्रल ग्रुप में कन्वर्ट कर देती है। एंड इन दिस वे जो हमारा टारगेट एंजाइम है वो आफ्टर बीइंग रिड्यूस्ड वो एक्टिव हो जाता है। सिंप्लीफाई अगर इसको करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि थायोडॉक्सिन और अपने सल्फ हाइड्रल ग्रुप के साथ जब किसी एंजाइम जो कि जिसके अंदर सल्फर सल्फर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, तो उसको अगर थायरोडॉक्सिन जो है सल्फ हाइड्रल फॉर्म के साथ यानी रिड्यूस्ड फॉर्म में दी जाए, तो वो एंजाइम को सल्फ हाइड्रल ग्रुप देके और इसको रिड्यूस कर सकता है, और खुद दोबारा से ये जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला जाएगा। ये जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ये अगेन फेराडॉक्सिन थायरोडॉक्सिन यानी FTR के जरिए दोबारा से रिड्यूस हो सकती है। ये कैसे रिड्यूस होती है इसको फर्दर हम जो है नेक्स्ट डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं। Here is the details of the ferredoxin thyrodoxin system. Here is the diagrammatic representation of this complex. It is a complex of actually three. The complex has three components. One is the FTR, ferredoxin thyrodoxin reductase enzyme, which have a variable subunit and a catalytic subunit. And the two other components are thyrodoxin, which is shown here as in green color, and ferredoxin, which is shown here as in blue color. So here you can see another representation of this complex. Here is the iron sulfur component of the FTR enzyme, and here is its cysteine residue. One is you can say the one is cysteine 57 and the other one is cysteine 87. In the first reaction, light will with the help of PS1 will produce reduced ferredoxin, and this reduced ferredoxin will be utilized for the cleavage of the bond between the cysteine 57 and cysteine 87 via this disulfide bond. So this disulfide bond cleavage is required. So this will require two electrons. One electron will be provided by the iron sulfur center of the FTR enzyme itself, and here you can see after giving one electron, the oxidation state will be changed from +2 to +3. So after giving one electron, this oxidation state of this iron sulfur A has been changed, and the other electron will be given by the reduced ferredoxin, which is produced in turn via the PS1 upon the activation from light. So after getting two electrons, this sulfur-sulfur bond has been cleaved, and now the status of the complex is like that कि एक सल्फर जो है वो नेगेटिव चार्ज के साथ मौजूद है, जबकि जो दूसरा सल्फर है इसके सल्फर जो 87 है, इसने स्टेबलाइज कर लिया खुद को बाय फॉर्मिंग अ फिफ्थ लिगेंड विद द FTR itself, यानी कि FTR के ही
जो आप कह लें कि के साथ ही खुद ही इसने जो आयरन सल्फर क्लस्टर है उसके साथ ही इसने सल्फर ने बॉन्ड बनाकर खुद को स्टेबलाइज कर लिया है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जबकि इसके सल्फर जो सल्फर है ये आफ्टर गेटिंग द इलेक्ट्रॉन दिस विल बी चार्ज एज नेगेटिव। Now, this condition will favor the attachment of thyrodoxine protein, regulatory protein here, ताकि वो जो कि पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होगी और फिर वो इन इन इनसे अटैचमेंट के बाद ही इस काबिल होगी कि वो रिड्यूस हो सके। तो थर्ड स्टेप में आप देखते हैं कि थायरोडॉक्सिन जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है अलोंग विद द हाइड्रोजन जो कि स्ट्रोमा में, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो स्ट्रोमा में हो रहा है, तो स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को लेकर और ये थायरोडॉक्सिन ऑक्सीडाइज जो है along with this complex and hydrogen ion from the stroma, this will get attached with this complex via this bond. So sulfur 57 जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अब उसने थायरोडॉक्सिन के सिस्टीन रेजिड्यू के साथ बॉन्ड बना लिया है, जबकि जो दूसरा सिस्टीन रेजिड्यू है थायरोडॉक्सिन का वो सल्फ हाइड्रल जो है उसमें चेंज हो गया है विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन। So upon the acceptance of the thyrodoxine protein, इस कॉम्प्लेक्स की हालत कुछ इस तरीके से है कि अभी इसके साथ थायरोडॉक्सिन प्रोटीन अटैच हो चुकी है और एक के ऊपर जो है वो सल्फाइडल ग्रुप की फॉर्म में और ये लिगेंड अभी भी मौजूद है और ये सल्फर जो है ये आपस में ब्रिज बना चुके हैं। And the fourth reaction and another molecule of ferredoxin reduced जो है वो यूटिलाइज होगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा और वो इलेक्ट्रॉन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा कि ये जो लिगेंड था अब ये ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से जो पॉजिटिव 3 स्टेट है इसको पॉजिटिव 2 स्टेट में चेंज करेगा आफ्टर गेटिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फेराडॉक्सिन रिड्यूस्ड फॉर्म। तो रिड्यूस फेराडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसको कन्वर्ट कर देगी फ्रॉम द पॉजिटिव 3 टू पॉजिटिव 2। सो क्योंकि अब इसकी स्टेट जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो चुके हैं, तो ये लिगेंड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और इस लिगेंड के ब्रेक होने की वजह से अब इस सल्फर के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसी नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से फिफ्थ रिएक्शन में ये होगा कि नाउ इट इज एबल टू रिलीज दिस थायरोडॉक्सिन और ये एक आप कह लें कि जो सल्फ हाइड्रल उसके पास ऑलरेडी मौजूद था, अब एक और हाइड्रोजन आयन वो स्ट्रोमा से लेगा थायरोडॉक्सिन प्रोटीन और इसके साथ ये सल्फाइडल ग्रुप बना देगा, तो अब इसके दोनों सल्फाइडल ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ इट इज इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। सो हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था कि जिसमें थायरोडॉक्सिन जो थी वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में थी और फिफ्थ स्टेप के बाद थायरोडॉक्सिन जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। यही थायरोडॉक्सिन रिड्यूस्ड फॉर्म जो है दिस विल बी यूटिलाइज्ड बाय द एंजाइम्स ऑफ द कैल्विन साइकिल जो कि इनकी एक्टिवेशन के लिए इस्तेमाल होगा, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है कि किस तरीके से थायरोडॉक्सिन अपने सल्फाइडल ग्रुप रिड्यूस्ड सल्फाइडल ग्रुप्स के साथ ये किस तरीके से एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में इस्तेमाल होगी। आउट ऑफ 5 4 एंजाइम्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो फेराडॉक्सिन थायरोडॉक्सिन सिस्टम के ज़रिए जो हैं वो रेगुलेट होते हैं या एक्टिवेट होते हैं, लेकिन रुबिस्को के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये फेराडॉक्सिन थायरोडॉक्सिन सिस्टम के ज़रिए जो है वो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि एक्टिवेट होती है, डायरेक्टली ये लाइट से रेगुलेट नहीं होती। अलबत्ता ये देखा गया है कि इसकी एक्टिविटी जो है वो लाइट के प्रेजेंस में इंक्रीज होती है और लेकिन ये फेराडॉक्सिन थायरोडॉक्सिन के रिस्पॉन्स में एक्टिवेट नहीं होता। अम, इसके लिए इसकी एक्टिविटी के लिए जॉर्ज लॉयमर और उसके कोलीग्स ने देखा कि रुबिस्को को एक्टिवेट करने के लिए एक्चुअली अनदर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिक्वायर्ड है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कैल्विन साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो रहा है इस्तेमाल हो रहा है, ये वो वाला मॉलिक्यूल है। वो मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है जिसको फिक्स होना है ड्यूरिंग द कार्बन साइकिल। ये है दिस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द रुबिस्को एंजाइम, यानी कि पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द रुबिस्को एंजाइम एंड देन अनदर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल विल बी यूटिलाइज्ड एज सबस्ट्रेट टू बिकम फिक्स्ड इन द Kelvin cycle.
सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिवेटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, दिस विल रिएक्ट स्लोली विद द अनचार्ज्ड ग्रुप जो है NH2 का एंजाइम का, रुबिस्को एंजाइम का, ऑफ द लाइसिन रेजिड्यू विद इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ये वहां पे जाके उसके साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, और इसी प्रोसेस को हम कार्बोमाइलेशन भी कहते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इसके अंदर अटैच हो जाना। जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इस तरीके का होगा कि उसके साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोमेट की फॉर्म में, डेरिवेटिव की फॉर्म में इसके साथ अटैच्ड होगा, जो कि न्यू एनायनिक साइट बन जाएगी। और यही न्यू एनायनिक साइट जो है ये रैपिडली बाइंड करेगी मैग्नीशियम आयन के साथ, और दिस विल यील्ड एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मींस के रुबिस्को पहले अटैच होगा एन एक्टिवेटर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इसकी कार्बोमाइलेशन करवाएगा, एंड आफ्टर कार्बोमाइलेशन इट विल रैपिडली बाइंड्स टू द मैग्नीशियम आयन। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, रुबिस्को एंजाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम। सो ये एक आप कर लें, कहने के टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जो ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली एक्टिवेटेड फॉर्म है रुबिस्को की, जो कि अब इस काबिल है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो काम है वो कर सकती है। ये जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स है, दिस इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और देखा गया है कि लाइट डिपेंडेंट जो स्ट्रोमल चेंजेस हैं पीएच की और मैग्नीशियम आयन की, ये फैसिलिटेट करती हैं एक्टिवेशन कोई कार्बन रुबिस्को की एक्टिवेशन की। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि रुबिस्को भी लाइट की वजह से ही एक्टिवेट होता है। एक्टिव साइट में रुबिस्को जो है ये बाइंड करता है अनदर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये फिर 2,3 एन डायोल फॉर्म ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट की बनाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक आप कह लें कि एक्सट्रीमली इनस्टेबल फॉर्म है, ट्रांजिशन फॉर्म है, जो कि लेटर ऑन विल गिव राइज टू 2 molecules of 3-phosphoglycerate in case of Calvin cycle. Both decarbamylation and carbamylation of Rubisco are inhibited by sugar phosphate. अगर sugar phosphate मौजूद हो तो carbamylation या decarbamylation दोनों को ही ये इनहिबिट कर सकती है। द बाइंडिंग ऑफ द शुगर फॉस्फेट सच एज, हमारे पास जो एग्जांपल है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बजाते खुद की, यानी कि अनदर मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जो कि इसका सबस्ट्रेट भी है रुबिस्को का, ये अगर बाइंड करता है तो दिस विल आल्सो प्रिवेंट द कार्बोमाइलेशन प्रोसेस, यानी कि इसको एक्टिवेट होने से रोक सकता है। सो द शुगर फॉस्फेट कैन बी रिमूव्ड बाय द एंजाइम रुबिस्को एक्टिवेज। तो अगर कोई शुगर फॉस्फेट रुबिस्को के साथ अटैच्ड हो जाती है तो वो इसकी कार्बोमाइलेशन के प्रोसेस, जो कि इसकी एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उसको ये इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है। और अब अगर हम चाहते हैं कि रुबिस्को एक्टिवेट हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी कार्बोमाइलेशन हो, और कार्बोमाइलेशन तब तक नहीं होगी जब तक कि शुगर फॉस्फेट जो है वो रुबिस्को से सेपरेट ना हो जाए। और शुगर फॉस्फेट को सेपरेट करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है दैट इज रुबिस्को एक्टिवेज, जो कि एक्सेलरेट करता है रिलीज ऑफ द बॉन्ड शुगर फॉस्फेट एंड दस प्रिपेयरिंग द रुबिस्को फॉर कार्बोमाइलेशन। रुबिस्को एक्टिवेज की फर्दर डिटेल जो कि अब तक अवेलेबल है वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे हम एक और मॉलिक्यूल का जिक्र कर रहे हैं जो कि इसको रेगुलेट, रुबिस्को को रेगुलेट करने का बायस है, एंड दैट इज द नेचुरल शुगर फॉस्फेट कार्बोक्सी एराबिनिटोल 1 फॉस्फेट, जिसको आप CA1P भी कह सकते हैं। दिस इज क्लोजली रिजेंबल्ड 6 कार्बन ट्रांजिशन इंटरमीडिएट ऑफ द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। पहला ही रिएक्शन जो कार्बोक्सिलेशन का होता है उसमें जो ट्रांजिटरी मॉलिक्यूल बनता है ना, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल CA1P का स्ट्रक्चर बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। और लेकिन ये फैसिलिटेट नहीं करती, ये इनहिबिटर के तौर पे काम करती है। सो दिस इनहिबिटर इज एक्चुअली प्रेजेंट एट वेरी लो कंसंट्रेशन द लीव्स ऑफ द मैनी स्पीशीज, एंड लेकिन लेग्यूम्स और सोयाबीन, जैसे कि सोयाबीन है इसमें देखा गया है और बीन्स में देखा गया है कि इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी हाई पाई जाती है। तो इसका काम करने का तरीका क्या है कि CA1P भी एक्चुअली, जैसे मैंने आपको शुगर फॉस्फेट की एग्जांपल दी है, बिल्कुल उसी तरीके से ये रुबिस्को के साथ बाइंड करेगी एट नाइट, जब रुबिस्को का कोऑपरेट नहीं करना होता तो एक्चुअली लीव्स में क्या होता है कि वो CA1P के साथ बाइंड कर देते हैं, और जिसकी वजह से इस रुबिस्को एक्टिवेज जो है
वो उस पे अमल नहीं करती। वो तब अमल करेगी जब लाइट होगी, तो लाइट आएगी तो रुबिस्को एक्टिवेज विल रिमूव दिस शुगर फॉस्फेट फ्रॉम द रुबिस्को। और अपॉन लाइट जो है फोटोन डेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी के इंक्रीज होने की वजह से रुबिस्को एक्टिवेज जो है वो इसको रिमूव कर देगी फ्रॉम द रुबिस्को, और रुबिस्को जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। Recent work has shown that in some plants, Rubisco activase is also regulated by the paradoxin-thyrodoxin system. So, जैसे मैंने आपको बताया था कि paradoxin-thyrodoxin system is not directly involved to activate Rubisco, लेकिन क्योंकि रुबिस्को को एक्टिवेट करने के लिए रुबिस्को एक्टिवेज एंजाइम की ज़रूरत है, यानी कि एंजाइम को अनदर एंजाइम एक्टिवेट कर रहा है, और उस एंजाइम को एक्टिवेशन जो के लिए जो है वो फेराडॉक्सिन थायरोडॉक्सिन सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स के रुबिस्को जो है इनडायरेक्टली लाइट से एक्टिवेट होता है। Now, some of the information which are available regarding Rubisco activases are that there are two isoforms of Rubisco activases. One is 42 kilodalton and the other one is 47 kilodalton. 42 किलो डाल्टन एंड 47 किलो डाल्टन के स्ट्रक्चर में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि 47 किलो डाल्टन में एक्सी टर्मिनल पे एक्स्ट्रा पेप्टाइड रीजन जो है, जो कि इस फॉर्म को आइसोफॉर्म को ज़्यादा लेंथी बनाती है, वो मौजूद है। अदरवाइज बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सारा का सारा सेम है। एंड अलॉन्ग विद दिस ये भी देखा गया है कि इनके अंदर जो है सल्फाइडल एंड डाइसल्फाइड जो कन्वर्जन है वो भी मौजूद हैं। और आपको पता है कि जिसके अंदर भी ये डाइसल्फाइड सल्फाइडल में और सल्फाइडल डाइसल्फाइड में चेंज होने की एबिलिटी है, तो ये वो प्रोटीन जो है वो थायरोडॉक्सिन फेराडॉक्सिन सिस्टम के ज़रिए एक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो सकती हैं। लिहाजा रुबिस्को एक्टिवेजेस को भी एक्टिवेट होने के लिए या सल्फाइडल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए फेराडॉक्सिन थायरोडॉक्सिन सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि ये रुबिस्को एक्टिवेजेस की जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, अरेबिडोप्सिस प्लांट्स में इनको देखा गया है कि जो लॉन्गर फॉर्म है वो ज़्यादा एक्सप्रेस होती है जब हीट स्ट्रेस प्लांट को मिलता है, तो उसमें लॉन्गर फॉर्म जो है 47 किलो डाल्टन वाली वो ज़्यादा एक्सप्रेस होती है। और ये भी देखा गया कि दैट लॉन्गर आइसोफॉर्म इज मोर सेंसिटिव टू इनहिबिशन बाय हीट स्ट्रेस देन द फोटोसिंथेसिस इन द वाइल्ड टाइप, जिसमें शॉर्टर फॉर्म जो है वो होती है। हाउएवर इन आइसोफॉर्म्स का की कोई एसोसिएशन है थर्मल टॉलरेंस से या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है, इस पे भी स्टडीज होना बाकी है। Here is the way of the activation of Rubisco। जैसे कि आपको बताया था कि Rubisco की NH2 अमाइन ग्रुप जो है ये सबसे पहले अटैच होगा विद द कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वो एक्टिवेटर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सबस्ट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यानी कि ये इसकी एक्टिवेशन के में इस्तेमाल हो रहा है। So this process in which the carbon dioxide is get attached to the enzyme और इसकी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो दिस इज नोन एज द कार्बोमाइलेशन। और कार्बोमाइलेशन के बाद फिर मैग्नीशियम के साथ ये अटैच होगा और फिर ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स यानी कि रुबिस्को प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम आएंगे, टर्नरी कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा, एंड दिस इज नाउ द एक्टिव फॉर्म ऑफ रुबिस्को एंड दिस वन इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द रुबिस्को। सो एक्टिवेशन जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है एनहेंस होती है, एंड अपॉन डार्कनिंग एज यू कैन सी ऑल द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर। अपॉन डार्कनेस ये सारा रिवर्स हो जाएगा, एंड again Rubisco without the carbon dioxide and without magnesium ion will be in the inactive state, and with carbon dioxide and with magnesium in the active state। रुबिस्को एंजाइम की मॉड्यूलेशन और कैटालिसिस और एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होने का पूरा जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर समराइज है। अब मैंने आपको बताया कि रुबिस्को को एक्टिवेट होने के लिए कार्बोमाइलेशन रिक्वायर्ड होती है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कार्बोमाइलेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक इसके साथ कोई शुगर फॉस्फेट जो है वो अटैच्ड हो। तो और ये भी आपको बताया था कि शुगर फॉस्फेट जो है उसको डिटैच्ड करने के लिए ताकि रुबिस्को जो है वो फ्री हो जाए, तो हियर ई इज रिप्रेजेंटिंग द रुबिस्को एंजाइम। तो अगर इसको फ्री करना है फ्रॉम द शुगर फॉस्फेट तो एंजाइम रुबिस्को एक्टिवेज रिक्वायर्ड होगा, विच इन टर्न विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी will release the sugar phosphate from this complex and releasing the free enzyme
Now this free enzyme is able to get a molecule which is the activator of this enzyme of carbon dioxide, and this carbon dioxide get attached to this enzyme, and this is known as the carbamylation, and along with magnesium it will convert it into an active enzyme. और ये एक्टिव एंजाइम फिर हम जानते हैं कि with the help of ribulose 1,5 bisphosphate it can convert the ribulose bisphosphate into two molecules of 3-phosphoglycerate or 3-PGA. और अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो ये 3-PGA में कन्वर्ट कर देगा, और अगर इसी सबस्ट्रेट को ऑक्सीजन मिलेगी तो एक 3-PGA का मॉलिक्यूल बनेगा, जबकि एक जो है वो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का मॉलिक्यूल बनेगा जो कि C2 पाथवे में होता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो C3 पाथवे रन होगा, और अगर ऑक्सीजन होगी तो C2 पाथवे जो है वो रन होगा। So this was about the activation and modulation of Rubisco enzyme. इसके अलावा हमने एक और बात भी की थी कि Rubisco enzyme at darkness जो है वो inactivate फॉर्म में चला जाता है। तो और inactivate फॉर्म में मैंने आपको बताया कि ये with the help of sugar phosphate, जिनमें से एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी 2-कार्बोक्सी अरेबिनिटोल 1-फॉस्फेट, जिसको CA1P का नाम हमने दिया था। CA1P के साथ जब तक ये अटैच्ड होता है तब तक ये एंजाइम जो है आप कह लें कि इवन इट इज़ अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम, बट अगर इसके साथ CA1P अटैच्ड हो जाएगी तो ये विस्को एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। एंड अपॉन लाइट क्या होता है कि जो है रबिस्को एक्टिवेज जो है वो इस CA1P को से फॉस्फेट को रिमूव करके और CA को जो है इसमें से रिलीज कर देंगे, यानी कि 2-कार्बोक्सी अरेबिनिटोल को रिलीज कर देगी, और जिसकी वजह से फिर एंजाइम जो है वो इस शुगर फॉस्फेट यानी CA1P से फ्री हो जाएगा, और फ्री फॉर्म में दिस विल बी एन एक्टिव फॉर्म, और नाउ इट इज एबल टू now it is able to do its catalytic activity, that is the formation of formation of 3-PGA molecules. और अगर डार्कनेस में क्या होता है, ये तो था लाइट में कि लाइट में किस तरीके से रबिस्को एक्टिवेज जो है वह CA1P से इसको फ्री करके और इसको एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होता है। यही जब डार्कनेस होगी तो in the presence of ATP again ये CA will get phosphate from the ATP and get phosphorylated, and this phosphorylated form of the CA1P will be utilized for the inactivation of the enzyme by attaching with it. तो upon light ये रिलीज हो जाएगा और एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड अपॉन डार्कनेस ये अगेन इसके साथ अटैच हो जाएगा और जो है दोबारा से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स भी आपको दिखाए गए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो CA1P यानी कि 2-कार्बोक्सी अरेबिनिटोल 1-फॉस्फेट है, इसका स्ट्रक्चर जो है 2-कार्बोक्सी 3-कीटो अरेबिनिटोल 1,5 बिसफॉस्फेट, जो कि ट्रांजिटरी मॉलिक्यूल है। जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है पहला ही स्टेप जो है उसका, जो कि ट्रांजिशन फॉर्म का जो मॉलिक्यूल है, जिसके बाद ये 2-3 PGA में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसके साथ इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इसी वजह से ये इनहिबिटर के तौर पे भी इसमें काम करती है। Now light is also involved for the light dependent ion movements that regulate the Calvin cycle enzymes. Light actually causes the reversible ion changes in the stroma that influence the activity of the Rubisco and other chloroplastic enzymes. For example, upon elimination, we know that protons are pumped from the stroma into the lumen of the thylakoid. इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा कि स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की जो है वो कमी हो जाएगी। स्ट्रोमा में जब हाइड्रोजन आयन की कमी होगी तो डेफिनेटली उसकी पीएच जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, और इसी हाइड्रोजन आयन की कमी को पूरा करने के लिए मैग्नीशियम आयन जो है ये जो है इसकी स्ट्रोमा में अपटेक होगी, और इसकी वजह से फिर इस पूरे प्रोसेस के नतीजे में एक तो ये कि स्ट्रोमा में पीएच जो है वो 7 से बढ़कर 8 हो जाएगी, प्लस उसमें मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो भी हाई हो जाएगी। और यही जो चेंजेस हैं, पीएच का बढ़ जाना और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन का बढ़ जाना, ये सारी चेंजेस आई हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिसने स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को ल्यूमन में जो है वो पंप किया था तो ड्यूरिंग द जी स्कीम।
और इन्हीं चेंजेस की वजह से फिर बहुत सारे एंजाइम्स जो कि कैल्विन साइकिल में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम है, या सूडोहेप्टोलोज 1,7 बिसफॉस्फेटेज है, एंड राइबोलोज 5 फॉस्फेटेज काइनेज एंजाइम है। इन तीनों को देखा गया है कि ये एंजाइम pH 8 पे ज़्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू pH 7, एंड दे आल्सो रिक्वायर मैग्नीशियम आयन एज अ कोफैक्टर फॉर देयर कैटालिसिस। सो दोनों ही इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, pH का हाई होना और मैग्नीशियम आयन का मौजूद होना, ये दोनों ही रिक्वायरमेंट्स लाइट जो है वो पॉसिबल कर रही है। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट कि लाइट डिपेंडेंट आयन फ्लक्सेस जो हैं, these actually enhance the activity of the key enzymes of the Calvin cycle. Another factor which influence the rate of the regulation of this Calvin cycle is the transportation of the carbon from the chloroplast, because the Calvin cycle is meant for the production of the fixed carbon in the form of sugar. और अगर यही शुगर एक्सपोर्ट नहीं होगी फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट, तो कैल्विन साइकिल डेफिनेटली फर्दर रन नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और अगर वो चीज़ ऑलरेडी मौजूद है तो कैल्विन साइकिल के रेट पे इफेक्ट आएगा। तो इसके लिए क्लोरोप्लास्ट के एनवेलोप की इनर मेम्ब्रेन पे देखा गया है कि एक फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर मौजूद होता है, जो कि ऑर्थो फॉस्फेट के एक्सचेंज में ट्राइओस फॉस्फेट को जो है वो एक्सपोर्ट करवाता है फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट। और जब ट्राइओस फॉस्फेट की कमी होगी इन द क्लोरोप्लास्ट, या वो एक्सपोर्ट होती रहेगी, तो डेफिनेटली कैल्विन साइकिल के जो एंजाइम्स हैं वो फिर जो है कॉन्टिन्यूसली इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे। और ऑल्दो हम जानते हैं कि 6 में से 5 मॉलिक्यूल्स तो रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो 6th वन है उसका एक्सपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो एक्सपोर्ट होगा तो उसकी आप कह लें कि चाहे वो स्टार्च की सिंथेसिस के लिए एक्सपोर्ट हो, या वो सुक्रोज की सिंथेसिस के लिए साइटोसोल में जाए, या स्टार्च की सिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट में वो इस्तेमाल हो, दोनों ही सूरतों में आप यूँ कह लें कि जो लेवल है प्रोडक्ट का वो डिक्रीज हो जाएगा इन द मीडियम, और कैल्विन साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो ऑपरेट होता रहेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको रेगुलेशन ऑफ द कैल्विन साइकिल जो है वो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। एज ऑलवेज आई गिव यू द लिस्ट ऑफ द बुक्स फ्रॉम वेयर द मटेरियल हैव been collected for the preparation of the lecture. So these are the Biochemistry and Molecular Biology of Plants by Buchanan, and Plant Physiology 5th edition by Theis and Zeger.